Today we are going to study physics of class 9. Our chapter is motion. Today is our second day of this chapter. We study today about speed. What is speed? How much distance traveled in how much time? How much distance traveled in how much time? That is called speed. Distance traveled by a body in unit time. Per unit time. Distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time is called speed. Nothing else. Distance traveled per unit time is called speed. Here we have written speed is equal to distance traveled by time taken. You can ask, sir, what is the unit of speed? In SI, the unit of speed, we can calculate unit of the speed at SI, the unit of distance is meter and unit of time is second. That means meter per second. We can write it in symbol meter per second and it is write as such as meter per second. Any problem? No. In CGS, the unit of distance is centimeter and unit of time is second. So can we say the unit of speed in CGS is centimeter per second. So we have known what is speed. The distance traveled per unit time is called speed. Distance travel per unit time is called speed. Is it okay? Now we are going to calculate some problems. Here is one problem. A person went how much distance? 60 meter. In how much time? In 5 seconds. How can you calculate speed? Speed is equal to distance traveled by time taken. Then we see here the distance is 60 meter and time is 5 seconds. Then we can say speed is equal to 12 meter per second. Here is our another problem. A body travels a distance of 60 km in 5 hours. Find its speed. We know speed is equal to distance traveled by time taken. Here distance is 60 km and time is 5 hours. We have to change kilometer into meter. We know the kilometer means 10 to the power 3. 60 into 10 power 3 meter and 5. And hour means how much second? 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. Here we can cancel 60 and 60 and now we get 10 to the power 3, that means 1000, and here 6, 5, 30, 300. Then we can calculate 10 by 3 meter per second, that means 3.34 meter per second. Is it okay? Yes, sir. We have known about speed. The types of speeds. One is uniform speed. Uniform speed. Which is called uniform speed? Here, one body moves 10 km in 2 hours. Again, the next 10 km in 2 hours. Again,
the next 10 kilometer in 2 hours. That type of speed is called uniform speed. What you say, sir? I say only when distances are same and time intervals are also same, then it is called uniform speed. What you say, sir? I say only equal distances in same time intervals. That speed is called uniform speed. Is it clear? Yes, sir. The next type of speed is non-uniform speed or variable speed. What is variable speed? What is non-uniform speed? When a body moves 10 kilometer in 2 hours, but the next 10 kilometer in 3 hours. That means distances are same, but time intervals are different. Distances are same, but time intervals are different. That speed is called non-uniform speed. Or another case is here. 10 kilometer in 2 hours and next 12 kilometer in 2 hours. That means times are same, time intervals are same, but distances are different. Distance traveled are different. That is also called a non-uniform speed or variable speed. I have only to say equal distances in unequal time intervals or unequal distances in equal time intervals are called non-uniform speed. That type of speed is called non-uniform speed. Is it clear? Yes, sir. Then we go ahead. तीसरा देख रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड. एवरेज किसको कहेंगे? एवरेज स्पीड किसको कहेंगे? मान लो कि हमको कुछ दूरी तय करनी है यहां से, तो 10 किलोमीटर गए 2 घंटा में, अगला जो है सो कि 30 किलोमीटर गए कुछ और घंटा में, फिर आगे जो है सो कि कुछ और किलोमीटर गए कुछ और घंटा में. एवरेज क्या निकालेंगे हम? हमारा एवरेज क्या होगा? किस स्पीड से पहुंचे? कुछ नहीं करना है भैया. जब आपकी स्पीड, जब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ मत कीजिए. टोटल डिस्टेंस को ले लीजिए, जहां से चले और जहां पहुंचे टोटल डिस्टेंस को ले लीजिए, और जितना आपको टाइम लगे उस टोटल टाइम को ले लीजिए. आप पूरी टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए. टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, बस कुछ नहीं. टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आपका मिल जाएगा. यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन हम लोग कह सकते हैं इसको कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. बस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन, इसी का रेशियो निकाल लीजिए. यही बात बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन के रेशियो निकाल लीजिए, आपका एवरेज स्पीड एकदम आराम से निकल जाएगा. वही मैंने लिया है कि मान लो यहां से यहां तक है S1 डिस्टेंस, फिर S2 डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस को काट लिया, प्लस कर लिया, फिर टोटल टाइम को मैंने क्या किया, प्लस कर लिया, मेरा एवरेज स्पीड प्राप्त हो गया. लेकिन जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो 2 केसेस यहां उसका हो सकता है स्वाभाविक हो. इसलिए मैंने यहां पर 2 केसेस को लिया है. केस फर्स्ट लिया है कि व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल. जब हम यहां से यहां तक गए और ये भी 10 किलोमीटर और यहां से आगे ये भी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, दोनों 10 किलोमीटर हो,
तो हो सकता है कि मेरा एक नया रिजल्ट मिले। हम वहीं से काम किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए हैं S1 डिस्टेंस जो है S है और S2 डिस्टेंस भी S है। तब एवरेज स्पीड क्या हो सकता है? तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी S1 प्लस S2 हमने लिया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए टाइम बराबर हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो v1 स्पीड से गए हैं, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? S1 बाई v1। और यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो S2 बाई v2। आपको मैंने कहा कि मेरा डिस्टेंस मेरा सेम है, तो ऐसी दशा में S1 और S2 के बदला हम S लिख रहे हैं। S यहाँ भी और S यहाँ भी, और यहाँ भी S1 और S2 के पास हम S लिख दे रहे हैं। तब यहाँ पर S प्लस S 2S और नीचे S को कॉमन कर लिए हैं तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 आ गया है। S को मैंने कैंसिल कर दिया 2 बाई, और इसको मैंने जो है सो कि ऐड कर दिया। ऐड ऐसा ही ना करेंगे, कर दिया तो मेरा न्यू फॉर्मूला मिल रहा है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। जब आपका डिस्टेंसेस सेम हो, आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंसेस सेम हो और एवरेज स्पीड निकालना हो, तो आपके लिए मैंने एक नया फॉर्मूला बता दिया है। एवरेज स्पीड के लिए एक नया फॉर्मूला मैंने दे दिया है। जब डिस्टेंसेस सेम हो, ख्याल रखिएगा। लेकिन जब टाइम सेम हो, टाइम इंटरवल सेम हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों के सभी जस्ट बताएं इसके पहले कि जब डिस्टेंसेस सेम हो तो बता दीजिए, जब टाइम इंटरवल सेम हो तब क्या होगा? तब जो है सो कि हम लोग यही T1 प्लस और T2 दोनों बराबर है, T के बराबर है मान लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक S1 और यहाँ से यहाँ तक S2, ये डिस्टेंस T ही समय में और ये डिस्टेंस भी T ही समय में। तो आप तो जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। तो S1 का मतलब हमको मालूम है, S1 इक्वल टू डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम मैंने लिखा कि यहाँ से यहाँ तक गए हैं हम लोग v1 स्पीड से और टाइम t1 है, और यहाँ भी v2 इंटू t2 कर दिया। हमको मालूम है कि टाइम सेम है तो t1 को हमने t लिख दिया, t2 को मैंने t लिख दिया। यहाँ भी t1 को t, यहाँ भी t2 को t। यहाँ ऊपर t कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2, नीचे 2t आता है, प्लस करने पर t कैंसिल करते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2। एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हमको यहाँ भी मिला। हमको एक फॉर्मूला यहाँ बताया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और दूसरा फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। कब? जब डिस्टेंसेस सेम हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। ये तीन तरह का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जो एवरेज स्पीड हम लोग सवाल बनाएंगे, जब प्रॉब्लम्स में जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, तो हमको बहुत मदद करेगा। ये तीनों फॉर्मूला पर ख्याल कीजिए। अब थोड़ा सा आ रहा है तो आपको तुरंत न्यूमेरिकल्स का भी कुछ सवाल चखाते हैं। एवरेज स्पीड के सही फार्मूला को मैंने जगह कर दिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 जितना हो और जितना टाइम हो सबको हम लोग ऐड करके और जो है सो कि टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड बना मिल जाएगा। लेकिन अगर सेम डिस्टेंसेस हो तो हम लोग एक फार्मूला है मेरे पास, और सेम टाइम इंटरवल तो हमारे पास फार्मूला एवरेज स्पीड निकालने का मैंने जगह रखा है। और एक हम लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं यहाँ पर। कहता है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 2 आवर, 30 किलोमीटर इन 3 आवर और 90 किलोमीटर इन 7 आवर। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बता दीजिए हमको होल जर्नी का। तो हम यहाँ वही बताया है कि 60 किलोमीटर कितना बाई 2 आवर, 30 किलोमीटर 3 आवर और 90 किलोमीटर हमको 7 आवर में हमने टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दिया है, फिर टोटल टाइम को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया है, मुझे मिल गया है 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान से हम लोग इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.5 आवर, 30 किलोमीटर पर 2 आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। बस हमने नोट कर लिया इनको और बस हमने देखा हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का S1 प्लस S2 प्लस S3। हमने बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है
स्पीड इनटू टाइम, तो हम स्पीड इनटू टाइम को कर लिए। इनके लिए S1 के लिए हमारा डिस्टेंस निकल गया, इनके लिए भी स्पीड इनटू टाइम कर दिए, इनके लिए भी स्पीड इनटू टाइम कर दिए। हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 निकल गया और नीचे तो सिर्फ टाइम हमको नोट कर लेना था, ऐड कर लेना था। हमने इनको कैलकुलेट किया 60 इंटू 0.5, इनके लिए 30 इंटू 2, इनके लिए 70 इंटू 3 और नीचे टोटल टाइम को मैंने ऐड किया और मुझे इतना निकल कर आया और मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 54.5 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसानी से हम लोग अपनी ट्रेवल्स को जारी रखे हुए हैं, ट्रेवलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average. What we see here? We see here 30 km, 30 km. That means distances are same. Distances are same. Distance जब सेम हो जाए तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। मैंने इसी का यूज किया है, 2 इंटू V1 का मतलब 40 और V2 का मतलब 20। बस इसको ऐड कर दिए, नीचे में ऐड कर दिए हैं, बस मेरा निकल गया है 26.67 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस खाली हमको तथ्यों को देखना है, फैक्ट्स को देखना है, कह क्या रहा है। हमारे पास तो फॉर्मूला ऑलरेडी उपलब्ध है, एकदम आराम से निकाल लेंगे। Our next question is, on a 120 kilometer track, the train travels the first 30 kilometer with a uniform speed 30 km per hour and next 90 km with what speed। इसी को हमको प्राप्त करना है, क्योंकि एवरेज स्पीड जब टोटल जर्नी का निकाले हैं तो ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब एवरेज स्पीड मालूम है हमको, तो फॉर्मूला मुझे मालूम है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। यही मैंने यहाँ पर किया है, S1 S2 और T1 का मान मैंने यहाँ पर किया है कितना, 30/30 और T2 का मान 90/90/V2 कर दिया है। एवरेज स्पीड 60 दिया है, इसको प्लस किया 1 प्लस 90/V2 और 1 प्लस 90/V2 1/120/60, यही निकाल लिया है मुझे। तो V2 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर मेरा निकल गया है। इस तरह से हम आसानी से जो है सकी किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। चलते हैं, हम अपनी ट्रेवल को आगे बढ़ाते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप गाड़ी से चल रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपको किसी क्षण मन किया कि तुम देखे थे कि किस स्पीड से चल रहे हो, तो आपके सामने जो स्पीडोमीटर लगा रहता है आप उसमें देखकर बता लेते हो, देख कर निश्चिंत होते हो कि अभी 60 की स्पीड से चल रहा है कि 65 कि 73, ये आपको पता लग जाता है। उसी तरह की स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पता लग गया, ये स्पीड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। और आज का मेरा 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इस 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और हमारे इस YouTube के कमेंट्स पर या Facebook के कमेंट्स या मैसेंजर पर दीजिएगा। और प्रत्येक सही जवाब के लिए आपका स्कोर होगा 1, और ऐसे ही स्कोर बनाते चलिए, मेरा प्रत्येक एपिसोड देखते चलिए। और स्कोर जब आपका 500 स्कोर हो जाएगा तो ग्रीन ग्रेड, 1000 पर ब्लू बर्ड, 2000 पर ब्लैक कमांड और 5000 पर रेड रोज की उपाधि मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।